राइट. So 3 cases जो हमारे arise होंगे. The first case is that b square minus 4ac is greater than 0. If it is greater than 0, then equation is having real and distinct root, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले explain करा था. राइट. See, अभी जो हमने रूट्स की है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया, वो हमारा क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमने फॉर्मूला किया. राइट. सी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. से 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस 5 होगा. तो अकॉर्डिंगली हमारे जो दो रूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड रूट विल बी फ्रॉम द नेगेटिव साइन माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. राइट. सो दो कंडीशंस हमारी इसलिए बन रही है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ a positive number is always positive negative. So here we take an example. We have to find the roots of this equation. So our first step should be what? We have to compare our equation 2x square minus 7x plus 3 equal to 0 with the general form, and the general form is ax square plus bx plus c equal to 0 to get the values of a, b and c. So here we get a as 2, b is negative 7 and c is what? 3. Now next step is we have to find discriminant. Now we find d. d हमारा किसके इक्वल होता है? b square minus 4ac. So we calculate our d. d will be b is negative 7 square minus 4 into a is 2 into c is 3. So this is 49 minus 24. This is what? 25. See, here d is greater than 0. 25 is greater than 0. d is greater than 0 means equation is having real and distinct roots. Real and distinct roots implies equation has real. You have to write this statement in your answer. Real and distinct roots. राइट. अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें पता चल गया. एंड रूट्स हमारे किसके इक्वल हैं? अल्फा इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल है? 25 आ गया d. राइट. सो वी यूज द फॉर्मूला अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d भी लिख सकते हो तुम अपॉन 2a. राइट. सो दिस इज माइनस ऑफ b. b इज व्हाट? नेगेटिव 7 plus under root d. d is what? 25 under root 25 upon 2 into a. a is what? 2. अब यहां पर प्लस माइनस नहीं लेना. 25 को हम जस्ट 5 लिखेंगे, प्लस माइनस 5 नहीं, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव हम पहले ही यहां पर सेपरेट कर चुके हैं. सो अल्फा हियर इज माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5 upon 4. So 7 plus 5 12 upon 4 alpha we get 3. And second case beta is minus b minus under root d upon 2a. So this is minus of minus 7 minus root d is 5 upon 2 into a. So this is 7 minus 5, 2 upon 4. So answer is 1 by 2. So here we have two real roots and they are distinct because d is greater than 0 in this case. So this is our first case, right? So next case is what?
if b square minus 4ac is equal to 0, then the quadratic equation has two real and equal roots. मतलब रूट्स तो दो ही होंगे बिकॉज क्वाड्रेटिक है, रूट्स रियल भी होंगे बिकॉज रूट ऑफ 0 is 0, but they are equal. See how? And roots are given by alpha beta, both are given by minus b upon 2a. अब हम देखते हैं माइनस बी अपॉन 2a इक्वल कैसे आ रहे हैं, बाकी चीज कहाँ गायब हो गई। से हमारा जो फॉर्मूला था अल्फा बीटा वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सी हेयर इन दिस केस b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, ये जो पार्ट है ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। सो अल्फा बीटा विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, एंड अंडर रूट ऑफ 0 इज व्हाट, 0। इसका मतलब जो अल्फा बीटा है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन 2a। सो अल्फा इज माइनस बी अपॉन 2a एंड बीटा इज ऑल्सो माइनस बी अपॉन 2a. That is why if b square minus 4ac is 0, we have real and equal roots. Here is the example. Find the roots of the equation 9x square minus 6x plus 1 equal to 0. So we compare our equation with ax square plus bx plus c equal to 0, right? To get the values of a, b and c, here a is 9, b is negative 6 and c is what, 1. Now we find d. d हमारा क्या होता है, b square minus 4ac. So this will be b is negative 6 square minus 4 into a. a is 9 into c. c is 1. So this is 36 minus 36 equals to 0. So here in this case d is 0. इसका मतलब equation has real and equal roots. Therefore equation has real and equal roots, right? अब रियल एंड इक्वल रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं, किसके इक्वल है, अल्फा बीटा इज माइनस बी अपॉन 2a. सो अल्फा बीटा विच इज माइनस बी अपॉन 2a, वी प्लेस द वैल्यूज, माइनस ऑफ b इज व्हाट, negative 6 upon 2, a is 9, so this is 6 upon 18, so alpha beta is 1 upon 3, so alpha is 1 by 3 and beta is also 1 by 3. So here in this case the roots are real, तो अल्फा बीटा दोनों की जो वैल्यूज हैं सेम है। इसका मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल का 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस विल टच द एक्स एक्सिस एट अ सिंगल point. So this is the case where the equation is having real and equal roots. And one more important thing, जैसे कि मैं बता रहा हूँ real and equal root, no real root and real root में हम डायरेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? In case we have in general form, अगर हमारा c का वैल्यू नेगेटिव आता है, अगर c हमारा नेगेटिव है मतलब a and c both are in opposite sign, तो रूट्स आर ऑलवेज रियल, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा d है, राइट। बी स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा एंड ये माइनस साइन है, इसका मतलब अगर a एंड c ऑपोजिट इन साइन हो गए तो ये जो रिजल्ट है माइनस 4ac वो नेगेटिव आएगा एंड नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। इसका मतलब जो d है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब हमें एक चीज ये पता चल गई, ये अभी आगे भी हम नेचर ऑफ रूट्स में मैं ये डिस्कस करूंगा, बट यहां पर मैंने बता दिया तुम्हें ये कि इक्वेशन हम डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, बट अगर हमें इक्वेशन में ये नजर आ रहा है कि a एंड c आर इन ऑपोजिट साइन, इसका मतलब रूट्स आर ऑलवेज रियल, जस्ट बाय
कंसिडरिंग द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट पार्ट, हम देखकर ही बता सकते हैं वेदर द रूट्स आर रियल। और थर्ड केस इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जैसा कि अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन करा था, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंडर है, एंड रूट के अंडर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। सो हियर इज द केस बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ लेस देन 0 देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना ही कट करेगा। तो हम एक ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स इफ एग्जिस्ट of the equation 3x square minus 5x plus 5 equals to 0. Now we compare our equation with ax square plus bx plus c equals to 0. To get the values of a, b and c, here a is 3, b is negative 5 and c is what? 5. See, जो A और C के जो साइन है वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब दे आर हैविंग सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नहीं देख के बता सकते कि वेदर इट इज हैविंग रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा डी। हाँ, अगर इनके साइन ऑपोजिट होते तो हम बिना डी फाइंड आउट किए भी बता सकते हैं वेदर दे आर हैविंग रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। सो वी कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट, b square minus 4ac. So this is minus 5 square minus 4 into a into c is 5. So here it is 25 minus 60. So the result is negative 35 which is less than 0. So here d is less than 0. इसका मतलब क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। Therefore, equation has no real roots. इसका मतलब इस केस में रियल रूट्स हमारे पॉसिबल नहीं होंगे, राइट। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ गई? एक ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट्स, मतलब दिस इज द केस फॉर रियल रूट्स एंड दिस इज द केस फॉर नो रियल रूट्स। एंड यहां पर अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फर्दर, दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट एंड दिस इज फॉर इक्वल रूट्स। तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें बेसिकली करना क्या है, जो हमने अभी प्रोसीजर किया, आई रिपीट दैट प्रोसीजर। जस्ट हमें क्या करना है, अपना जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन हमें उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है, उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, एंड डिपेंडिंग ऑन द केस वेदर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0 विल फाइंड आवर रूट्स।